آج بروز جمعہ باضابطہ طور پر باقاعدہ طور پر اس کام کا آغاز کر دیا گیا ہے جو پاکستان میں نارملی کیا جاتا ہے۔ 6 ججز جنہوں نے مداخلت کا الزام لگایا، جنہوں نے ایجنسیوں کی طرف سے ڈرائے دھمکائے جانے کا الزام لگایا، اب ان ججز کی شامت آنے والی ہے۔ اور ان 6 ججز میں سے سب سے پہلے کس جج کی باری آئی ہے؟ پہلے جج کو باضابطہ طور پر آج نشانے پر لے لیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و عافیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ اگر ابھی تک آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک ضرور کر لیں، آپ کے لائکس اور کامنٹس ہمارے لیے بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ ناظرین کرام، اس وقت بہت کچھ سائملٹینیسلی اس ملک میں چل رہا ہے، لیکن ابھی تک جو ججز ہیں 6 ججز، 8 میں سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کا دھماکہ خیز خط، اس خط کے بعد مٹی پاؤ پروگرام جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے اور کمیشن ایک لالی پاپ کی حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اس کمیشن کو مسترد کر چکی ہے۔ کیا 6 حاضر سروس جج صاحبان ایک ریٹائرڈ جج کے سامنے پیش ہوں گے؟ کیا اچھی ساکھ کا حامل صرف ایک ہی جج ہوگا اور اس کمیشن کے اندر جمہوریت نہیں ہوگی، صرف ون مین شو ہوگا؟ اور اس کمیشن کے حوالے سے بھی پہلے ہی یہ بتایا جا رہا ہے، میری طرف سے نہیں، ہم سب کی طرف سے نہیں، بلکہ وہ صحافی جو خود کو یا تو طاقتوروں کا ٹاؤٹ کہتے ہیں، ان کا ترجمان خود ساختہ کہتے ہیں، یا وہ صحافی جو قاضی صاحب کے ٹاؤٹ اور ترجمان ہیں، یا پھر جو آل شریف کی پے رول پر ہیں، یہ سب آج کل ایک ہی پیج پہ ہیں۔ تو یہ صحافی جو ہیں یہ اس وقت لگاتار کہہ رہے ہیں کہ اس کمیشن سے ان ججز کے خلاف ہی کارروائی جو ہے وہ آگے بڑھے گی۔ اس میں پاکستان تحریک انصاف کی بھی کچھ غلطیاں ہیں، ان غلطیوں کا بھی ذکر کریں گے، لیکن آج باضابطہ طور پر پہلے جج پر جو عتاب ہے وہ آ چکا ہے۔ اس پر آنے سے پہلے کچھ بڑی اپڈیٹس آپ کے سامنے رکھ دوں۔ پاکستان تحریک انصاف کی رہنما صنم جاوید کا نام 9 مئی کے مقدمات میں شامل کر دیا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق میاں والی کے تھانہ سٹی میں 9 مئی کو توڑ پھوڑ کے 2 مقدمات درج سے صنم جاوید کا نام پہلے سے درج مقدمات میں بطور ملزمہ شامل کیا گیا ہے۔ صنم جاوید کی گرفتاری کے لیے ڈی ایس پی صدر کی زیر قیادت ٹیم جو ہے وہ لاہور پہنچ چکی ہے اور صنم جاوید کی پہلے رہائی ہوئی ان کیسز میں جو لاہور میں توڑ پھوڑ کی صنم جاوید نے، اور اب میاں والی بھی صنم جاوید اسی دن پہنچ گئی اور وہاں پر بھی میاں والی میں صنم جاوید نے توڑ پھوڑ کی۔ مطلب آپ نے اس سانحے کو، جو کہ ایک بہت بڑا سانحہ ہے، اس طرح کے کام کر کے کہ جس میں صرف اور صرف پولیٹیکل وکٹمائزیشن نظر آئے، اس سانحے کے حوالے سے جو سوالات ہیں وہ مزید جنم لیتے ہیں۔ میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ 9 مئی کا سانحہ ہمارے شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی صرف ہمارے ادارے کا کنسرن نہیں ہے، میرا بھی کنسرن ہے، پاکستان کے 25 کروڑ عوام کا کنسرن ہے، ہم سب اس میں سٹیک ہولڈر ہیں، ہم سب کے دل ٹوٹے اس دن۔ لیکن جب ان کیسز کے اندر اس طرح کے کیس بنائے جاتے ہیں کہ جی ایک بندے کے اوپر 4 شہروں کے اندر ایک ہی وقت پہ کارروائی ڈالنے کا مقدمہ ہو، پھر کچھ سوالات ضرور کھڑے ہوتے ہیں۔ اچھا، وہیں دوسری جانب اڈیالہ جیل میں سیاسی اور عام قیدیوں سے ملاقات پر جاری پابندی ختم ہونے کے بعد پی ٹی آئی کے 11 سیاسی رہنماؤں کو بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب سے ملاقات کی اجازت ملی ہے، اور بڑی دلچسپ بات ہے کیونکہ اس سے پہلے صرف وکلا عمران خان صاحب سے ملا کرتے تھے، لیکن تفصیلات کے مطابق پی ٹی آئی کے 11 سیاسی رہنماؤں کو عمران خان صاحب سے ملاقات کی اجازت ملی ہے۔ فیصل جاوید، سالار کاکڑ، علی بخاری، خالد مسعود، ندیم افضل، ایڈوکیٹ نوید انجم عمران خان صاحب سے ملاقات کریں گے۔ ساجدہ بیگم، سراج احمد، سردار اظہر طارق، بیرسٹر گوہر، زرتاج گل، شعیب شاہین، عمیر نیازی بھی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرنے والوں میں شامل ہیں۔ گزشتہ روز یاد رہے کہ جیل انتظامیہ نے سیاسی اور عام قیدیوں سے ملاقاتوں پر 2 ہفتوں سے جاری پابندی ختم کی۔ پنجاب حکومت نے سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر 12 مارچ کو اڈیالہ جیل میں ملاقاتوں پر پابندی عائد کی تھی، اور اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ملاقاتوں پر پابندی کا مقصد بانی پی ٹی آئی سمیت اڈیالہ جیل میں 7
7,000 से ज़ायद कैदियों की हिफाजत यकीनी बनाना था। ये मौक़िफ़ था महकमा दाखिला का, ये मौक़िफ़ था स्टेट का। लेकिन आपको पता है कि हकीकत क्या थी। इमरान खान साहब से मुलाकातें ना हो सकें, सेनेट के इंतखाबात की टिकट्स भी बिलखुसूस उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अब एक सिंध हाउस वाला जो बंदा जिसे टिकट दिया, उम्मीद है कि ये सियासी लोग कम अज़ कम जाकर खान साहब से कोई बात करेंगे और उनसे कोई हिदायत लेकर आएंगे, क्योंकि ये बात हजम नहीं होती जो कल मैं अपने वीलॉग में आपके सामने रख चुका हूं। अच्छा भाई, दूसरी जानिब शहबाज शरीफ साहब और उनकी हुकूमत की शरारतें इस वक्त जारी व सारी हैं। पहले इन्होंने कुछ कमेटीज़ जो कि यूजुअली वज़ीर ख़जाना उनकी सरबराही करता है, इन्होंने एक कमेटी अपने पास रख ली, बाकी कमेटीज़ इन्होंने वज़ीर ख़ारजा को दे दी जो कि इसहाक डार साहब हैं, और सब ने यह खबर चलाई कि वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब के पर काट दिए हैं। अब काबीना की एक कमेटी है जो ECL में नाम डालती है, उसमें वज़ारत दाखिला का डायरेक्ट रोल है, वो काम ही वज़ारत दाखिला का है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने उस कमेटी की सरबराही वज़ीर दाखिला से लेकर अपने पास रख दी, और कमेटी में भी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को नहीं शामिल किया। ऑल्दो सेक्रेटेरियल जो सपोर्ट है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ही देगी, लेकिन इंटीरियर मिनिस्टर उसमें शामिल नहीं होगा। ये भी एक शरारत है, जाहिर बात है, छेड़खानी है। शहबाज शरीफ साहब से ये बात हजम नहीं हो रही कि एक वज़ीर दाखिला जो है वो अपनी मर्जी करना चाहे और मैं अपनी मर्जी करना चाहूँ, वो बड़ों को फ़ोन करे और बड़े मुझे डांट पे ला दें और मुझे फिर उससे माफ़ी मांगनी पड़े। तो जाहिर बात है कि यूं लग रहा है कि एक पेज बहुत जल्दी फट सकता है। अब शहबाज शरीफ साहब जो हैं, इन्होंने मुश्तरका मफादात काउंसिल CCI, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट काउंसिल है पूरे पाकिस्तान के अंदर, सूबों से लेके हर चीज़ को ये देखती है, इसकी तश्कील नौ कर दी है। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मंजूरी के बाद मुश्तरका मफादात काउंसिल की तश्कील नौ का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। 8 रुकनी मुश्तरका मफादात काउंसिल के चेयरमैन वज़ीर आज़म होंगे, जबकि चारों सूबों के वज़राए आला बतौर मेंबर काउंसिल में शामिल होंगे। ये हो गए जी आपके 5 बंदे। इसके अलावा मुश्तरका मफादात काउंसिल में पहली मरतबा वज़ीर ख़जाना की जगह वज़ीर ख़ारजा को शामिल किया गया है। वज़ीर ख़जाना मुश्तरका मफादात काउंसिल के परमानेंट मेंबर होते हैं, लेकिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने साबिक वज़ीर ख़जाना और मौजूदा वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार के तजुर्बे और सूबों से मामलात तय करने की सलाहियतों को देखते हुए मोहम्मद औरंगज़ेब साहब को डिच करवा कर जो परमानेंट मेंबरशिप एक वज़ीर ख़जाना की होती है CCI में, वो उनसे लेकर अपने जो भाई हैं उनके समधी को दे दी है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब पहली मरतबा काबीना का हिस्सा बने हैं, इसलिए ये कहा जा रहा है कि जी उनकी जगह तजुर्बा कार इसहाक डार को काउंसिल में रखा गया है। लेकिन जाहिर बात है, आप अंदाजा कर लें कि इस चीज में क्या होगा असल हकीकत, और ये शरारत जो है ये कॉस्ट भी इन्हें बहुत ज्यादा कर सकती है। ऑल्दो नून लीग के अंदर भी इस वक्त चीजें जो हैं वो अच्छी खासी खराब है। लाहौर के ज़िमनी इंतखाबात में लीगी रहनुमा और साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज के नामजद उम्मीदवार टिकट हासिल करने में नाकाम हो गए हैं, और हमजा शहबाज अपने खाली किए जाने वाले हल्के PP 147 में कबीर ताज और माजिद जहूर का उन्होंने नाम दिया था। ताहम इस हल्के शादरा से मुस्लिम लीग नून ने साबिक MNA मलिक रियाज जो है उन्हें टिकट दे दिया है। यानी मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो है वो हमजा शहबाज की अब PP की सीट्स के ऊपर भी, जो सीट हमजा शहबाज ने खुद छोड़ी है, उस पर रिकमेंडेशंस को भी जूते की नोक पर रख रही हैं। ये अंदर खाते चल रहा है। नवाज शरीफ ग्रुप की एस्टैब्लिशमेंट के साथ लड़ाई, नवाज शरीफ ग्रुप की शहबाज शरीफ ग्रुप के साथ लड़ाई, और अब शहबाज शरीफ ग्रुप का भी ताकतवरों के भेजे गए 2 बंदों को हल्का फुल्का डोज देना, ये बहुत कुछ वाजे कर रहा है। बढ़ते हैं, कुछ और बड़ी आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। आपको पता है कि एक कमीशन बनाने का तो ऐलान कर दिया है, कल वफाकी काबीना का इजलास भी शहबाज शरीफ साहब ने बुला लिया है। इस कमीशन के अंदर जो एक रिटायर्ड जज होगा उसका भी सबको पता है कि वो किस तर्ज पर काम करेगा। अब वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा है कि अदालत में मुदाखलत के मामले पर अदालती कमीशन बनाने का फैसला सुप्रीम कोर्ट के जजों ने फुल कोर्ट इजलास में किया, जिसे हुकूमत ने तस्लीम किया। अब चीफ जस्टिस साहब जो है या फुल कोर्ट जो है वो ये तासुर दे रही है कि जी हुकूमत ने ये तजवीज़ दी और हुकूमत ने कहा कि हम तहकीकात करवाएंगे। हुकूमत ने अब ये कह दिया है कि जी कमीशन बनाने का फैसला तमाम जजेस का था, जिसे हुकूमत ने तस्लीम किया है। और इस सब के अंदर वज़ीर आज़म ने चीफ जस्टिस से कहा कि अगर अदालती कमीशन बनाना उनके इख्तियार में होता तो वो फौरी नोटिफिकेशन निकाल देते। इसके लिए काबीना की मंजूरी ज़रूरी है। मज़ीद बरा वफाकी काबीना का इजलास हफ्ते को तलब कर लिया गया है, ये वफाकी वज़ीर कानून कह रहे हैं। अच्छा भाई, दूसरी जानिब नाज़रीन किराम, मैं आपको ये बता दूं कि जो पाकिस्तान बार काउंसिल है
उसके चीफ के खिलाफ भी बगावत हो चुकी है और 6 जजेस का खत अहम है, क़यादत को मुकमुका नहीं करने देंगे। ये खत जो है ये चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी और वाइस चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार काउंसिल जो है उसे लिखा है और ये पाकिस्तान बार काउंसिल के जो मेंबर्स हैं उन्होंने ये खत लिखा है अपने ही जो उनके बार काउंसिल के कर्ता धर्ता हैं, जो बार काउंसिल की क़यादत है, कि ये खत 6 जजों का बहुत अहम है, इसके अंदर आपको मुकमुका नहीं करने देंगे। जो आप अंदर खाते बिलो द टेबल आप चीज़ें करना चाह रहे हैं और इस वक्त पाकिस्तान की बहुत सी बार एसोसिएशंस और बहुत सी स्पेसिफिकली बार काउंसिल उसमें आज़म नज़ीर तारड़ साहब का जो होल्ड है और वो इसे जिस तरह से लेके चल चुके हैं, ये सब कुछ हम सब के सामने है। अच्छा, अब जरा आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान के अंदर अब मजीद इंकशाफात का दौर है। आपको पता है कि केपी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जमात इस्लामी के साथ इत्तेहाद करने जा रही थी। जमात इस्लामी अचानक इत्तेहाद से मुकर गई कि जी पीटीआई ने हमसे सही बात नहीं की। अलबत्ता अब बैरिस्टर गौहर जो हैं उन्होंने ये इंकशाफ कर दिया है एंड दिस इज़ अ न्यू एंड अ बिग डेवलपमेंट कि जमात इस्लामी को भी दबाया गया, जमात इस्लामी को भी बताया गया कि और उन्हें समझाया गया कि आपने पीटीआई से बात नहीं करनी। दरअसल ये तहिया किया हुआ था कि पीटीआई को डिमोलिश करना है और जमात इस्लामी भी इसी बात के प्रेशर में आ गई। नाउ दिस इज समथिंग वेरी बिग। अब इसके साथ आगे बढ़ते हैं। एक बहुत बड़ा इंकशाफ है और ये इंकशाफ मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब ने किया है और ये मोहसिन अख्तर कियानी साहब जो हैं, जज साहब जो हैं जिन्होंने खत लिखा, उनके हवाले से है कि अब उन्हें भी निशाने इबरत बनाया जाएगा, उन्हें भी मज़ाहिर नकवी बनाया जाएगा, उन्हें भी अब अपने उहदे से हाथ धोना पड़ेगा। और आपको पता है पहले ही आज़म नज़ीर तारड़ कह चुके हैं कि हम तो इनके इल्ज़ामात की तहकीकात कराएंगे, इन 6 जजेस के मिसकंडक्ट पे अदलिया फैसला करेगी। यानी इससे बड़ा मिसकंडक्ट क्या हो सकता है कि आपकी मजाल कैसे हुई ये खत लिखने की, इतनी बड़ी होली काउस जो हैं उनके जिक्र करने की, आपका कलम नहीं टूट गया उससे पहले, और अब इन्हें ही ट्रक के नीचे देने का फैसला कर लिया गया है और पहला जज जो निशाना बनने जा रहा है आप जरा सुने। खिलाफ भी रेफरेंस सामने आ रहा है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो है वो लेक व्यू लेन हाउसिंग सोसाइटी के पार्टनर हैं 18% के। उनकी सारी फैमिली इस हाउसिंग सोसाइटी की मालिक है। उनका फर्स्ट कजन, उनके 2 अंकल उनके साथ इस हाउसिंग सोसाइटी में पार्टनर हैं। तो ये लेक व्यू लेन जो हाउसिंग सोसाइटी है इसका एनओसी नहीं मौजूद है सीडीए से, और इसने बगैर एनओसी के 50 करोड़ की सेल कर दी है। और इसके खिलाफ जो केसेस हैं उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी प्रोटेक्शन देते हैं, उन पर इल्जाम मुबैना तौर पर यह है, और उसके साथ साथ सरकारी जमीन भी इसमें है। तो एक हाउसिंग सोसाइटी की प्रोटेक्शन का जो इल्जाम जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी पर आ रहा है, और ये कि वो नीचे वाली जुडिशरी से भी उसमें मदद करते हैं और उनका एक साइड बिजनेस है ये। जी, तो नाज़रीन करम आपने ये गुफ्तगू सुनी तो दिस इज़ वेरी अलार्मिंग। और जाहिर बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहुत सी गलतियां हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या कमिश्नर लियाकत चट्ठा वाले मामले के ऊपर इंक्वायरी होगी, जो कुछ हुआ, सुप्रीम कोर्ट में कोई पटिशन दायर की, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस इशू के ऊपर पटिशन्स लेकर गई? वो एक एडवोकेट दाऊद है जो कि मज़ाहिर नकवी साहब के खिलाफ कंप्लेनेंट था, वो अभी ये खत आया नहीं है, उसने सुबह पहला काम ये किया, रात को खत आया, उसने एप्लीकेशन दे दी सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि जी इन जजेस का ये जो खत है ये सोची समझी साजिश लगता है, पॉलिटिकल मैनूवर लगता है, इस पर काम करें। पीटीआई वालों को नहीं लिखना आता, मतलब कुछ तो चीजें हैं। इमरान खान साहब मैदान अमल में होते तो अभी तक तो दमादम मस्त कलंदर हो गया होता। सुप्रीम कोर्ट के सामने ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सके, ये काजी साहब के और एक कोर कमेटी का इजलास आता होता है, उसका एक एलामिया बेहतरीन सी उर्दू जिसकी हम भी तारीफ करते हैं, लेकिन उस उर्दू के अंदर बेहतरीन सी जुबान के अंदर एलामिया जारी होता है, उसके बाद सब खाबे खरगोश का मजा लेना शुरू हो जाते हैं। इन जजेस के ऊपर अगर अताब आएगा और इसके अंदर पीटीआई ने प्रेशर बिल्ड नहीं किया तो इस अताब के अंदर पीटीआई की जो मौजूदा लीडरशिप, जो इस वक्त बहुत से लोग पीटीआई के अंदर मौजूद हैं, वो जिम्मेदारी इसकी फिर लेने के लिए तैयार हो जाएं। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।